ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد بھی بیتی رات جو ہے رجوری کے سرحدی علاقوں میں بڑے بڑے موٹار شل اور گولے داغے گئے، جس کے بعد لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ لوگ ابھی بھی جو ہے رجوری سے کافی تعداد میں باہر نکل چکے ہیں، یعنی کہ اپنے آبائی گاؤں یا آگے پیچھے شفٹ ہو چکے ہیں۔ نہ صرف رجوری بلکہ پونچھ ضلع کی بات کریں، سرنکوٹ کی بات کریں تو تمام لوگ جو ہے ان میں افراتفری جیسا ماحول ہے، لوگ ڈرے ہیں، لوگوں میں پینک ہے۔ اور یہ خبر آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس خبر کے مادھیم سے آپ تمام لوگوں کو تفصیلات جانکاری فراہم کروائی جائے گی کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، رجوری کی اس وقت کیا استھتی ہے، رجوری میں کیا کچھ حالات چل رہے ہیں۔ رجوری میں جو ہے اس بیتی رات کے بعد کوئی سیز فائر وائلیشن یا پھر شیلنگ کی واردات تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن لوگوں میں کافی زیادہ پینک ہے، لوگ ڈرے ہیں، سہمے ہیں، لوگ ابھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے۔ لیکن اگر پونچھ کی بات کریں تو پونچھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ میرے ساتھ ڈیفنس ایکسپرٹ جو ہیں اس پورے معاملے پر رجوری کی اس انڈو پاک ٹینشن کو لے کر جو ایک پینی نظر رکھتے ہیں، سمیت بھارگو میرے ساتھ ہے۔ سمیت جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تکنیکی خرابی کی وجہ سے لائیو براڈ کاسٹ اینڈ ہو گیا تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آزاد جی، سب سے پہلے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیتے 16 گھنٹوں میں کچھ حد تک بہتری ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی حالات جو ہیں وہ لوگوں کے اعتبار سے پوری طرح معمول نہیں ہو پائے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جو بیتے کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی یہ اعلان کیا کہ ان کی مداخلت کے بعد ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے، تو لوگوں نے بہت بڑی راحت کی سانس لی تھی، اور خاص کر کے ان لوگوں نے جو کہ شیلنگ سے متاثر ہوئے، جن کے سروں پر گولے پڑے، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے، اس سب کے بیچ جو ہے وہ لوگوں نے راحت بھری سانس لی۔ لیکن ایک سیز فائر ایگریمنٹ کے ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد تب تصویر تھوڑی بدل گئی تھی، جب پاکستان نے اس ایگریمنٹ کی ہی خلاف ورزی کی، اور یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کی طرف سے رجوری کے سندر بانی، اخنور کے پلاوالا، کھوڑوا جو کیری پٹل کا علاقہ ہے، یہاں زبردست شدید شیلنگ کی گئی۔ آرٹلری شیلنگ سے پہلے کی طرح ہی نشانہ بنایا گیا رہائشی علاقوں کو اور دیگر جگہوں کو، اور اس میں نہ صرف آرٹلری شیلنگ سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی بلکہ جو ایئر سپیس وائلیشن تھی وہ بھی پاکستان کی طرف سے ہوئی، جس میں پاکستان نے جو ڈرونز تھے، اور وہ بھی درجنوں کی تعداد میں ڈرونز جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول و آئی بی کے سیکٹر سے جو ہے وہ اندر داخل کروائے، اور کئی ڈرونز جو ہیں وہ لوگوں نے خود راجوری کے اوپر سے بھی جاتے دیکھے تھے۔ اور اس میں بڑی بات یہ تھی کہ جو ہندوستانی فوج کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوا تھا، اور ان ڈرونز کو مار گرانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی وجہ سے راجوری کے آسمان میں بھی جو ہے وہ زبردست فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ حالانکہ لوگوں نے کچھ منٹ کے لیے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ شیلنگ ہے، لیکن حالانکہ رجوری میں بیتی رات شیلنگ نہیں ہوئی تھی۔ قدرے حال حالات پچھلے 3 دن کی بنسبت بیتی رات کچھ بہتر ہوئے، لیکن ابھی بھی لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے، اور یہ چیز میں آپ کو بالکل اپنے دم خم سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگوں کے اندر ڈر بیٹھا ہے، یہ ڈر نکلنے میں ابھی کئی ہفتے لگیں گے، اور خاص کر کے جن لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے مالی، جن کے مکانات یا دکانوں کو نقصان پہنچا، اور جن کا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تو بھرپائی اس کی تو پوری عمر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایگریمنٹ کے بعد کچھ حد تک قدرے حال بہتری آئی ہے، لیکن جو بیتی رات پاکستان نے کیا، اور اس کے بعد ایک مرکزی حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے یہ جانکاری بھی دی گئی کہ ہندوستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کی سیز فائر وائلیشن کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان سے اپیل بھی کی کہ آپ صحیح ڈھنگ سے سیز فائر ایگریمنٹ کو بحال کروائیں۔ امید کرتے ہیں کہ سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد حالات بہتر ہوں گے، لیکن ابھی بھی آپ کہیں کہ بیچ میں کچھ خدشات ہیں تو وہ بالکل ہیں، اور یہ خدشات بالکل ہیں کہ پاکستان ابھی بھی اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ سمیجی، جیسے 10 مئی کے صبح جو علل صبح جس طرح کے بڑے بڑے موٹار شل رجوری شہر کے اوپر داغے گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ رجوری شہر کے لوگوں نے کافی زیادہ جو ہے وہاں سے پلان کر دیا ہے، لوگ وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں، تو آج لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں، لوگ اس انفارمیشن کو سننا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے کان ترس رہے ہیں کہ کیا 10 مئی میں اور 11 مئی کی صبح میں کوئی انتر دیکھا گیا ہے، یا اس صبح جو 10 مئی کو بڑے بڑے گولے داغے گئے جس میں کئی ساری جانیں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئی، جس میں ہمارے ایک قابل ترین آفیسر جنہیں ہمیشہ رجوری کی دھرتی جو ہے وہ یاد رکھے گی، جن کا نام ایڈیشنل ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر رجوری جو ہے راج کمار تھاپا جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، وہ شہید ہوئے، وہ بھی نہیں رہے۔ اور 10 مئی اور 11 مئی میں کیا فرق دیکھا آپ نے، اور لوگ جو پینک میں ہیں ان کو کیا اپیل کریں گے؟ دیکھیے جو 10 مئی اور 11 مئی کے فرق کی آپ نے بات کی، تو بالکل اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بیتی کل صبح جو ہے وہ لوگوں نے ایک ایسا وقت دیکھا جو مجھے لگتا ہے راجوری میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ مانا گیا ہے کہ راجوری شہر پہ
किसी भी जंग के दौरान शेलिंग नहीं हुई है। बिल्कुल। जो बुजुर्ग सुनाते हैं कि चाहे 1965 की जंग थी, 1971 की जंग थी या 1999 की जंग थी, 1999 की जंग में जो शेल्स थे वो टंडवाल तक आए थे, लेकिन राजौरी शहर तक कभी भी शेल्स नहीं आए थे। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ राजौरी शहर को निशाना बनाया बल्कि पहले पुंछ शहर में तबाही की। पुंछ शहर को तो पाकिस्तान ने आप ये कह सकते हैं कि निस्तो नाबूद करने तक की कोशिश कर दी और वहां पे इतनी आर्टिलरी शेलिंग की। और जो आप मोटार शेलिंग की बात कर रहे हैं, ये दरअसल मोटार शेलिंग नहीं बल्कि मोटार से भी 2 दर्जे ऊपर बहुत खतरनाक मानी जाने वाली आर्टिलरी शेलिंग थी। और आर्टिलरी शेल्स का ये माना जाता है, जो आपने खुद तबाही के निशान देखे, कि जहां पे एक आर्टिलरी शेल आकर गिरेगा वो अपने इर्द गिर्द 500 मीटर के इलाके को तबाह कर देता है। अब अगर तो वो खुला इलाका है, खुली जमीनें हैं, तो उसके निशान आप खुद देख सकते हैं कि कितने दूर दूर तक उसके स्प्लिंटर मार्क्स होते हैं। हाँ, जहाँ ये किसी घनी आबादी या मकानात या ढांचों के इलाके में पड़ेगा तो यकीनन जब वो जहाँ पड़ेगा तो उसके स्प्लिंटर उठेंगे और वो दीवारों में जाके रुक जाते हैं, तो इसलिए उसके नुकसान का उतना पता चलता नहीं। तो राजौरी ने जो वक्त 10 मई की सुबह देखा है वो ना तो कभी देखा था और उम्मीद है कि वापस कभी देखा नहीं जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग जो कि सोशल मीडिया वॉरियर्स थे और जो बस ये कहते थे कि जंग लग जानी चाहिए और जंग जो है वो लड़ी जाए या जंग में ऐसा हो वैसा हो, उनके जो जहन थे वो ठिकाने पे आए हैं कि जंग किसे कहते हैं। और जब गोला आकर गिरता है, गोला ना तो किसी का मजहब देखता है, ना किसी की जात देखता है, ना किसी की बिरादरी देखता है, ना किसी इलाके को देखता है। वो गिरता है और जहाँ गिरता है वहां सिर्फ तबाही होती है, वहां सिर्फ मौत का तांडव होता है। और ये चीजें राजौरी ने देखी और वो एक ऐसा वक्त था कि मैं यकीनन कह सकता हूँ कि राजौरी की 100% आबादी जो है वो मौत के मुंह से निकलकर बाहर आई, क्योंकि जितनी शेलिंग राजौरी पे उस दिन हुई, अगर वो शेल्स कुछ एक शेल्स जो रिहायशी इलाकों में आकर गिरे और उन्होंने तबाही मचाई, लोगों के मकानात को तबाह किया और कितने लोगों को जख्मी किया और कितनी कीमती जानें जो थी वो चली गई। अगर वही शेल्स जो कि दरियाओं में गिरे, जो कि खुले इलाकों में गिरे, अगर वो शेल्स भी रिहायशी इलाकों में गिरते तो शायद आज राजौरी लहू लुहान और ज्यादा व खतरनाक तरीके से होता। आज सुबह जो है वो हालात कुछ हद तक बेहतर है क्योंकि शेलिंग नहीं हुई है, जो कशीदगी है, जो बॉर्डर टेंशन है वो बनी हुई है। अब रहा सवाल लोगों का कि जो लोगों ने नकल मकानी की है। देखिए, कभी भी सरकार जो है वो किसी भी इलाके से नकल मकानी का ऑर्डर जारी नहीं बिल्कुल नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, इंतजामिया ने नहीं किया। लेकिन ये जरूर है कि हर एक शख्स अपनी जान को महफूज करने के लिए अपने तौर पे कुछ इकदाम उठाता है जो कुछ हद तक ठीक भी है। कि अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में सीधे तौर पर शेलिंग हो रही है, आपका इलाका सीधे से निशाना बन रहा है और आपके पास कोई एक दूसरा इंतजाम है जहाँ की आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। और इस पर सबसे अच्छी बात ये रही है कि लोगों ने सरकार पर दारोमदार नहीं रखा है, क्योंकि सरकार पहले ही बेहद मसरूफ है। सरकार 10 चीजें और देख रही है। अगर यहाँ लोग बिल्कुल अपने आप को छोड़ छाड़ कर ये कहेंगे कि हमें बस सरकार के पास ही जाना है, हमें बस सरकार के मत्थे ही बैठ जाना है, तो वो चीज भी ठीक नहीं होती। लोगों ने इस पर अच्छा ये किया क्योंकि मजबूरी का वक्त है, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर वक्त बिताना है और लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर जाने का सुमित जी एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, राजौरी के लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गिरदोनवा के लोग, क्या पैगाम है, शॉर्टकट क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा, नकल मकानी अगर आपने की, आपका अपना फैसला था। अगर आप वापस आते हैं वो भी आपका अपना फैसला है, कब आना है वो आपने देखना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी आप आए, या जो लोग फिलहाल राजौरी में रह रहे हैं, जो लोग खास करके उन इलाकों में रह रहे हैं जहां तक अब तक शेलिंग हो चुकी है या उससे कुछ ही किलोमीटर आगे, उन लोगों को पूरी तरह से अपनी महफूज जो SOPs हैं, जो सेफ्टी SOPs हैं, वो लागू करनी है, जो कि एडवाइजरीज के तौर पर जारी भी हो चुके हैं। मैं सबसे पहले बताऊं, किसी भी कीमत पर शेलिंग होते वक्त अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और वो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आप सीधे तौर पे मौत को दावत दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको कोशिश करनी है कि जो कई मंजिला इमारतें हैं, जैसे कि डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, आप उसमें जाएं और उसमें ग्राउंड स्टोरी पर रहें। अब यकीनन ये बात भी है कि कई घर ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टोरी होता है और लोगों का, लेकिन उस वक्त देखें, ये वक्त ऐसा है, अगर जंग जैसा माहौल है तो इसमें आपने ये नहीं देखना कि ये मेरा रिश्तेदार है या नहीं है, या मैं इसे अपने घर में पनाह दूं या ना दूं। वहां पे आपको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। इससे तमाम लोग जिनके पक्के मकान हैं और जिनके कई मंजिला मकान हैं, डबल स्टोरी हैं, ट्रिपल स्टोरी हैं, उन्हें अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदार जो कि सिंगल स्टोरी मकान में रहते हैं,
उन्हें अपने मकानात में जगह देनी है, और जिनके सिंगल स्टोरी मकान है वो शर्म पर्दा छोड़कर ऐसे मकानात में जाएं जो कि कई स्टोरीज, डबल स्टोरीज हैं, ट्रिपल स्टोरीज, और वहां पे ग्राउंड जो फ्लोर है वहां पर जाना है। उससे भी एक जरूरी चीज ये है कि अगर आपका सिंगल स्टोरी और आप वहीं पे रहना चाहते हैं, और इवन ये तो जो मल्टी स्टोरी मकान है उनके लिए भी एसओपी लागू होती है। सैंड बैग जो सॉइल बैग्स का एक कंसेप्ट है जो बहुत जरूरी है और हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। इन्फॉर्मेशन हमें लोगों तक पहुंचाई भी है। आपको अपने इर्द गिर्द जितने भी कोई पॉलीथीन मिलते हैं, कोई बैग मिलते हैं, कोई सीमेंट का बैग है, कोई आलू का बैग है, कोई टमाटर वाला बैग है, उन सब बैग्स में अगर तो रेत है तो ठीक, नहीं है तो मिट्टी जो है, मिट्टी भर के उन्हें जो है वो अपने घरों के आगे पीछे रखना है, खास करके अपने छत पर रखना अगर आप सिंगल स्टोरी मकान में रहते हैं। अगर सिंगल स्टोरी में नहीं रहते हैं तो आपको जहां पर आप रह रहे हैं वहां दीवारों के आगे पीछे 3-3 फीट तक उसको कवर करके रखें, क्योंकि ऊपर वाला ऐसा कतई ना करे। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई शेल आकर गिरता है, और शेल में सबसे बड़ी तबाही स्प्लिंटर्स करते हैं, तो अगर आपने सैंड बैग्स रखे हैं तो स्प्लिंटर्स की जो मार है वो सैंड बैग सहेंगे, और आपके अंदर नुकसान या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा, और इतना कम होगा कि जानी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद कल ही एक एडवाइजरी जारी हुई है, जो कि पहली एडवाइजरी है, जिसमें कह दिया गया है कि आपको सभी अपने इमरजेंसी किट तैयार करनी है। देखिए, हालात बेहतर हो रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक हुए ये नहीं कहा जा सकता, और पाकिस्तान कब वापस सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते ये भी नहीं कहा जा सकता। इमरजेंसी किट आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किट आपकी जिंदगी बचाएगा। इमरजेंसी किट में सबसे पहले एक मेडिकल किट है जिसमें तमाम जरूरी दवाइयां हैं, खास करके अगर आपके घर में कोई मरीज जो कि रेगुलर दवाई खा रहा है उसकी दवाइयां आपके पास जो है उनका बंदोबस्त करना है। सुमित जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात जो ये सुमित भार्गव सीनियर जर्नलिस्ट रजौरी से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तफसीली जानकारी दी है, और इन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर है, और लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, लोग ज़्यादा ना डरें। लेकिन वहीं उसके बाद जो अगर पुंछ की बात की जाए तो पुंछ में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ा है। लोग जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। सुरनकोट की अगर बात करें, पुंछ की बात करें, पुंछ मंडी की बात करें, तो लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त पुंछ से सीनियर जर्नलिस्ट वसीम हैदरी हैं। वसीम जी, आप क्या जानकारी देंगे कि बीते कल के बाद क्या सूरत हाल है पुंछ की? क्या कोई पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर वायलेशन की गई है, या फिर मौजूदा सूरत हाल क्या बनी हुई है? जी देखिए, रात कल से जब ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया है, उसके बाद पुंछ में चूंकि शहर खास को ज्यादा टारगेट बनाया गया था, ज्यादा डैमेज पहुंचा था, तो लोगों में जो है वो खुशी की लहर देखने को मिली, और उनके चेहरे बयान कर रहे थे कि सीज फायर कितना जरूरी था। उसके बाद से लेकर अब तक अगरचे कुछ जगहों पे जो खबरें आई कि सीज फायर वायलेशन रिपोर्ट किया गया, लेकिन पुंछ में सीज फायर वायलेशन रिपोर्ट नहीं किया गया है, और पूरी रात जो है सरहद पर खामोशी ही देखने को मिली है। तो लोगों में जो पैनिक है, वसीम जी क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने पुंछ को मैक्सिमम छोड़ दिया है, पुंछ वीरान है, क्योंकि पुंछ में काफ़ी ज़्यादा जानें जो हैं वो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। मंडी में भी बड़ी सूरत हाल ख़राब थी। जुलास की अगर बात की जाए, या सरहद से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, लोग परेशान हैं, जो लोग पैनिक में हैं, जो लोग आगे पीछे शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या एडवाइजरी कोई इंतज़ामिया की तरफ से जारी की गई है, या उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोग कुछ जानना चाहते हैं, अपने इलाकों का हाल जानना चाहते हैं। लोगों की ज़िंदगी जो है वो मामूल पर तो आने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन लोग इस वक्त परेशान हैं। क्या कहेंगे? देखिए, रात जो लोग अपने अपने रिहायशी इलाकों से छोड़ के किसी सेफर जगह पर गए हैं, ज्यादातर आबाई इलाकों में जो गए हैं, वो कल की तारीख में नहीं गए हैं, वो उससे 2 रोज कबल चले गए हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो टारगेट बनाया गया था, और पुंछ शहर खास और अतराफ के इलाकों में जो शेल्स हैं वो रिहायशी इलाकों में बहुत ज्यादा तादाद में गिरे हैं। यही एक वजह थी कि लोगों को वहां से निकलना पड़ा, और जो खुद निकले वो तो निकले ही, कुछ को एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी वहां से निकाला गया, क्योंकि उनकी जान पर बंद पड़ी थी। अब मामला ये है कि अब लोगों में पैनिक उतना नहीं है। मैं आपको पुंछ के हवाले से बात करूं, ये जब से एग्रीमेंट की बात सामने आई है, जो अंडरस्टैंडिंग की जो बात 2 ममालिक के दरमियान हुई है, जिसकी कंफर्मेशन खुद हमारे सिक्योरिटी के एडवाइजर की जानिब से दी गई थी, ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए, उसके बाद यहाँ लोगों के चेहरे पर जो रौनक है और जो खुशी है वो देखने को मिल रही है, और लोग ये तवक्का कर रहे हैं कि न सिर्फ ये 2 रोज का मुआहिदा रहेगा, बल्कि जो 12:30 बजे 12 तारीख यानी कल बात होनी है दोबारा से दोनों ममालिक की, उसमें भी पॉजिटिव
पॉजिटिव चीज जो है वो सामने आएगी और ये जो सीज फायर है इसी तरीके से चलेगा और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आएगी। वसीम जी, क्या अभी जो शहर है या बाज़ार है वहाँ पर फिर से रौनक लगना शुरू हुई है? बाज़ार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, लोगों की ज़िंदगी फिर से मामूल पर लौट रही है? रात मुकम्मल तरीके से तो या हम ये कहें कि 20-30% जो है वो बेहतरी आई है, ऐसा भी अभी नहीं है। उसके पीछे की वजह एक है कि चूंकि कल 12:30 बजे दोबारा से जो गुफ्तगू होनी है, जो बात होनी है दोनों ममालिक के दरमियान में, उसका भी कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि उसके बाद वो वापस अपने अपने घरों की तरफ जाएं। लेकिन अभी भी आज भी जब हम शहर में मौजूद हैं, शहर खास पुंछ में मौजूद हैं, तो इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों की जो चहल पहल पहले नहीं थी, आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर थी, वो अब कदरे जो है वो देखने को मिल रही है और जो गलियों में कुछ दुकानें हैं वो खुलती हुई भी हमें दिखाई दे रही हैं, जो साफ तौर पर ये संकेत है, इशारा है कि जो लोग हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और पॉजिटिव वे के साथ, जो थोड़ा डर का माहौल पहले था उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये सीज फायर इसी तरीके से आगे चलेगा। और मुझे लग रहा है कि कल के दिन में, कल 12:30 बजे के बाद से शाम तक हम देखेंगे शहर खास पुंछ जहां ज्यादा डैमेज हुआ है और जो ज्यादा हिट किया गया है रिहायशी इलाका, सिटी को कभी हिट नहीं किया गया था पुंछ खास को, लेकिन इस मरतबा जो हिट किया गया है, उम्मीद ये है कि कल शाम को हम वहां पर बहुत ज्यादा चहल पहल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वसीम, सीनियर जर्नलिस्ट वसीम हैदरी हमारे साथ पुंछ से जुड़े थे, जिन्होंने तफसीली जानकारी दी है और जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, पुंछ की क्या स्थिति है, मंडी की क्या स्थिति है, जुलास वगैरह इन तमाम तर इलाकों की क्या स्थिति है, ये तमाम तर जानकारी दी है। आप लोग बखूबी ढंग से जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या बनी हुई है। खित्ता पीर पंजाल जो है वो पूरी तरह से ये यहाँ के बसने वाले लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग मदद चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर सीज फायर एग्रीमेंट जो है लोगों के दिमाग में ये था कि अब लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों से जो है वो निजात मिलेगी। अब सुरम कोर्ट का अगर हाल जानना हो तो मेरे साथ हमारी जो सहयोगी हैं साइमा काजी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, तो साइमा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुरम कोर्ट के जो गिरदोनवा के इलाके हैं क्या मौजूदा सूरत हाल है और मामूल पर क्या ज़िंदगियाँ वहाँ पर लौट रही हैं। जी बिल्कुल आजाद, अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से रात को जो सूरत हाल थी उसमें कुछ ड्रोन्स जो थे, साइलेंट ड्रोन्स, वो आसमान में देखे गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो फायरिंग की आवाज भी आई थी, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है और लोग जो है सीज फायर के बाद जो है थोड़ी सी राहत में आए हैं और अब लोगों को ये उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अगर हम हालत देखें तो सुन कोर्ट में लोग जो है मामूल पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हालांकि अभी बाजार जो है वो पूरी तरीके से खुला नहीं है, लोग उस तरीके की जो पहले हम चहल पहल देखते थे वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में वो राहत है। और जो लोग अब कल सुरन कोर्ट को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर मुख्तलिफ जो महफूज मकामात पर गए थे, वो अब लोग सोच रहे हैं कि वापसी अपने घरों की करें। ये आफ्टर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त लोग जो है जो हम कहें कि सुकून में नहीं थे, अब वो पुर उम्मीद और पुरसुकून जो है वो नजर भी आ रहे हैं। और जो लोग अपने घरों को, ऐसा हुआ था कि सुन कोर्ट में कई लोग ऐसे थे जो अपने घरों को ताला तक नहीं लगा के निकले थे, यानी कि इतना खौफ और वो दहशत का माहौल था कि बड़े भयानक मनाजिर थे। सही में इससे पहले क्या आज से कबल जितने भी हालात खित्ता पीर पंजाल में बने हैं, कहा यह जाता रहा है कि सुरन कोर्ट एक सेफर प्लेसेस मानी जाती थी, लेकिन इस बार जो बड़े बड़े गोले यहाँ पर दागे गए, आर्टिलरी के बड़े बड़े गोले यहाँ पर दागे गए, जिस कारण यहाँ पर आम जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, यानी कि अस्त व्यस्त हुआ है, लोग काफ़ी मुतासिर हुए हैं। कितनी तादाद में लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान कितना हुआ है और जो माली नुकसान है उसकी क्या इतलात है आपके पास? खुशकिस्मती की बात यह है कि ये जो शेलिंग हुई है इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और जख्मियों की तादाद भी बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर। एक बच्ची है वो जख्मी हुई थी, माइनर इंजरी उसको हुई थी, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो लोगों का अभी तक जो मकानात हैं उनका नुकसान हुआ है, बाकी इस तरीके का कोई नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको मुझे ना एक चीज एक शॉर्टकट में आपसे जानना चाहूंगा, 10 मई और 11 मई की रात में और सुबह में क्या फ़र्क था ये बताएं आप, क्योंकि 10 मई में जो सुबह सवेरे जो अलल सुबह जिस तरह की चीज़ें देखी गई, जो बड़े बड़े गोले दागे गए, और आज दिन में क्योंकि आफ्टर सीज फायर एग्रीमेंट कोई राहत जो है वो देखी जा रही है।
بالکل بالکل، جس طریقے سے ہم نے 10 کی رات گزاری ہے، وہ رات سرن کوٹ کی تاریخ میں سب سے بدترین رات تھی. اور صبح کی اگر ہم دیکھیں، آج یا صبح کی ہم بات کریں تو لوگ جس طریقے سے ڈر و دہشت میں تھے، آج ویسے نہیں ہے. آج پرسکون نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک رات انہوں نے سکون سے وہ رہے ہیں، ایک رات انہوں نے سکون کی نیند کی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی. جس طریقے سے کل لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کی ہے، ایسا کبھی بھی سرن کوٹ کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. پرامن علاقہ رہا ہے. حالانکہ جب 90s میں ملیٹنسی پیک پر تھی، اس وقت بدترین حالات تھے، قتل و غارت ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنے مکانات نہیں چھوڑے، اپنی جگہیں نہیں چھوڑے، اپنے آباء و اجداد کا گھر نہیں چھوڑا. لیکن کل کی اگر ہم بات کریں، کل جس طریقے سے لوگوں میں دہشت تھی، وہ ویسا منظر کبھی بھی سرن کوٹ کی تاریخ میں نہیں ہوا. سمجھی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پرانی جنگ میں اور نئی جنگ میں انتر ہے. آج ایئر اٹیکس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مکانات تباہ ہو رہے ہیں. جہاں پر وہ موٹار شل، آرٹلری شل جو ہے وہ پڑ رہا ہے. آرٹلری شل سے بھی ایک اوپر لیول کا جو ہے وہ استعمال، جو اسلحہ ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں پر پڑے گا وہاں پہ اس علاقے کو نیست و نابود کرے گا. سائمہ، ایک آخری چیز مجھے یہ بتائیں، جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آفٹر سیز فائر ایگریمنٹ لوگوں کی زندگی معمول پر جلد سے جلد لوٹے گی؟ کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں. سرن کوٹ کی عوام کی اگر بات کی جائے، بالخصوص یہ جو بارڈر بیلٹ ہے یہاں کے لوگ پریشان ہیں. تو آپ شارٹ کٹ میں بتائیں، صرف زیادہ وقت نہ لیں، شارٹ کٹ بتائیں. جی بالکل، معمول کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، کل 12 تاریخ ہے اور کل ہی طے کرے گا. کیونکہ بہت ساری ٹویٹس آ رہی ہیں جو پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جن میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈرونز ہم نے ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں وہ ابھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتے. کل کے دن تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کل کے دن تک جو ہے لوگوں کے اندر بھی ایک ڈر ہے کہ کل کے دن تک اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، سیز فائر ہو جاتی ہے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ نارملسی کی طرف آ سکتی ہے. لیکن فی الحال اگر آج کی رات دیکھیں یا کل کا دن دیکھیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں اور لوگ جلدی نہیں کر رہے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں. وہ تھوڑا سا وقت اور لینا چاہ رہے ہیں. تھوڑی سی جو اطمینان ان کو ملا ہے، تھوڑی سی اس اطمینان کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنے جلدی ہم کوئی فیصلہ نہیں لیں گے. اپنی حفاظت جو ہے وہ اب اس حساب سے کی جائے گی کہ آج اور کل کا جو ہے وہ 12 تاریخ کی بیٹھک کو دیکھنے کے بعد اور ایک لوگوں کی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی رسک نہ لیا جائے، یہی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل تو بالکل. سرن کوٹ سے ہمارے جو سینئر پترکار ہیں سائمہ قاضی، ہماری سہیوگی ہیں، انہوں نے تفصیلی جانکاری دی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. بہرحال یہ آپ تمام لوگوں کے لیے انفارمیشن امپورٹنٹ ہے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھیں گے. یہ جتنے بھی لوگ خطہ پیر پنجال سے رجوری، پونچھ سے سٹے ہوئے جتنے بھی بارڈر بیلٹ کے علاقے ہیں، ان تمام تر لوگوں کے لیے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، جس میں رجوری کی انفارمیشن آپ کو دی گئی، پونچھ کی انفارمیشن دی گئی اور سرن کوٹ کی بالخصوص انفارمیشن دی گئی کہ موجودہ صورتحال ان علاقوں میں کیا بنی ہوئی ہے.